ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮಿಸುವೆ, ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮೋದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಪ್ರಜ್ವಲನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅದನ್ನು ಮೋದಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ನಗ್ನ ಮಾಡಿ ಓಡಾಡಿಸಿದ್ರು. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೇಘಾಲಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓರ್ವ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 6 ಬಾಲಕಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಆ ರೆಸಾರ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಲಾತ್ಕಾರಿಗಳ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಎಂದು ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 40,000 ಮಹಿಳೆಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅವರ 10 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದರು. ಲಿಂಗಾಯತರು ಹಾಗೂ ದಲಿತರು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಗಳವಾಡಬಾರದು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಲ್ವಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿಗರು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಗುಜರಾತ್ಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹರಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಲಾತ್ಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸೋಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ಚಾ ಸೋಪಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಜನರೇ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು कांग्रेस शासक जिग्नेश मेवानी ಹೇಳಿದರು. अभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है. आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपको इन्फॉर्म किया, फिर भी आप तमाम लोग यहाँ पर आए, तो मैं दिल से आपको सभी साथियों को थैंक यू कहना चाहता हूँ. सबसे पहले तो मैं बसवन्ना जी की इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ. आज बसवन्ना जी के कर्नाटका में प्रज्वला रेवन्ना का जो मामला सामने आया है, मैं मानता हूं इससे ज़्यादा बसवन्ना जी की लेगेसी का कोई इंसल्ट या अपमान नहीं हो सकता. कर्नाटका के इतिहास का और भारत के इतिहास का सबसे कलंकित काला ये चैप्टर है. और बहुत शर्म के साथ, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री अमित शाह और भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, जो देवराजे गौड़े ने बताया कि इन तीनों लोगों को पता था और बावजूद इसके इस बलात्कारी को टिकट दिया. और एक ऐसा खतरनाक दरिंदा है, एक ऐसा खतरनाक बलात्कारी भाजपा का ये नेता है कि उसने सैकड़ों महिलाओं के साथ उनका यौन शोषण किया है, उनका उत्पीड़न किया है, उनका मॉलेस्टेशन किया है और उन पर बलात्कार किए हैं. जहाँ तक सुनने में आ रहा है, पूरा मुल्क देख रहा है, ये एक इंसान के कम से कम 3,000 के करीब वीडियोस है. 2,800-2,900 वीडियोस आज पूरे कर्नाटका में, पूरे देश में उसके सर्कुलेशन में है. मतलब कि आरएसएस और बीजेपी का यही वास्तविक चरित्र है. दिल्ली की सड़कों पर बलात्कार की कंप्लेन लेकर हमारी एथलीट बहनें 100 दिन तक बैठी रही. पूरी आरएसएस खामोश रही, पूरा बीजेपी खामोश रहा,
और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हर रोज भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, वो उस बच्चियों को, हमारी बेटियों को पूछने तक नहीं गए, उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। गुजरात में बिल्किस बानू नाम की एक प्रेग्नेंट बेटी, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके आंखों के सामने 11, उसके परिवार के 11 लोगों का खून हुआ। 3 साल की बच्ची को मार दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तमाम आरोपियों को, तमाम रेपिस्टों को आजीवन कारावास। मोदी की, आरएसएस की, भाजपा की गुजरात सरकार ने सभी बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से छोड़ दिया, उनका स्वागत सम्मान किया, अबील गुलाल उड़ाड़ा, ढोल नगाड़े बजाए, उनको शाल पहनाई और मिठाई बांटी, मानो वो बलात्कारी कोई राष्ट्रपति का मेडल जीत कर आए हो। ये आरएसएस और बीजेपी का वास्तविक चरित्र है। मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके पूरे देश के सामने घुमाया गया, फिर भी प्रधानमंत्री जो मंगलसूत्र का म बोलते हैं, वो मणिपुर का म नहीं बोल पाए। हमारी आंखों के सामने, आप सोचिए पूरी दुनिया इसको किस प्रकार से देखती होगी। पूरी दुनिया देख रही कि हिंदुस्तान के मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हाथरस की बेटी, दलित समाज की बेटी, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, उसका खून हुआ और उसका डेड बॉडी उसके परिवार को, लोगों को देने के बजाय पेट्रोल डालकर रात के 12-1-2 बजे उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके परिवार के लोग उसके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। मेघालय भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष पकड़ा गया। क्या चला रहा था? पूरा एक रिसोर्ट चला रहा था। आरएसएस और बीजेपी के लोग रंगरेलियां मनाए, आरएसएस और बीजेपी के लोगों के सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए पूरा मेघालय में रिसोर्ट चला रहा था। और जब हमारी जांच एजेंसियों ने वहां पर छापा मारा, गिरफ्तारियां की, तो पता चला कि 18 साल से कम उम्र की 6 बच्चियां वहां पर पाई गई। मतलब कि आरएसएस और बीजेपी के लोग मेघालय में इस देश की बेटियों के साथ बलात्कार करते थे और पूरे आरएसएस और बीजेपी के लोग इस मामले में एक फार्म हाउस और रिसोर्ट खड़ा किया था। और अभी ये प्रज्वला रेवन्ना का मामला जो आया है, पूरी दुनिया के सामने भारत की आबरू को नीलाम किया है, हमारे देश की अस्मिता और गौरव को खंडित किया है, पूरी भारत भूमि को लज्जित किया है। मैं कहना चाहूंगा, भारत की सभी जाति और धर्म की बेटी हमारे लिए भारत माता है। वो हाथरस की बेटी हो, वो भी भारत माता है। हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, पारसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, वो सभी भारत माता है। तो मैं कहना चाहूंगा, इन भारत माता के ऊपर बलात्कार करके उनके